Hi, this is Ruchi Neelam Doctor. Once again, in front of you with another episode of Why Not Network Marketing. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम को सोचते वक्त अगर आपके मन में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिसीजन लेने में कोई भी कंस्ट्रेन या फिर कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. You must watch success story. You must watch people, those who have taken decision firmly to grow this industry for their financial freedom. आज हमारे गेस्ट है पंकज कुमार एंड उषा सिंह. पंकज कुमार इज अ कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट. पंकज जी एक ऐसे व्यक्ति है जो एक वर्सेटाइल एटीट्यूड के साथ, आई वुड से दैट अ वेरी लाइवली jovial human being. He has completed his commerce post graduation, started global management accountancy से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया. 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एक्सपीरियंस के बाद, he was a group CFO for conglomerate African giant Stellation Group. सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक अपने तजुर्बे के साथ एंटर करता है, या तो फिर उसकी सक्सेस की कहानियों को लेकर क्लैरिटी के साथ बिजनेस को ग्रो करता है, डेफिनेटली इट गिव्स अस लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम सच पर्सनालिटीज. वी ऑल्सो हैव अलॉन्ग विद उषा सिंह द बेटर हाफ ऑफ पंकज कुमार. उषा जी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कोचिंग इंडस्ट्री में कंप्लीटली रूटेड है. उनकी लाइफ का शायद ऐसा लगता है कि एक ऐसा मिशन होगा जिसकी वजह से कोचिंग बिकम पार्ट ऑफ हर पर्सनालिटी, हर रूटीन, हर रेगुलर इनपुट्स विथ लर्निंग एंड शेयरिंग द नॉलेज बिकॉज शी बिलीव्स इन नॉलेज इंडस्ट्री. उषा जी इज सर्टिफाइड इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच and also at the same time she is also associated with various industry having a management background and process of lot of corporate learnings. So let us invite Usha Singh and Pankaj Singh on the screen for this episode. Hi Usha, how are you? Hi, I'm fine. How are you, Ruchi? Thank you so much and thank you for accepting this invitation to be here on this show. And let us talk about something that, this is a session where we are talking about why not network marketing. So I always tell people, why not? अगर हम डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं, तो why not network marketing? So I want to start asking question with Pankaj. Pankaj, when you get into direct selling industry, and जब आपने शुरुआत की, so what was your mindset and how did you enter this industry? Did you get any inhibitions? क्या शुरू में आपको कुछ डर थे? मुझे आपके पहले तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, हमारे सारे श्रोताओं को जानने में इंटरेस्ट है, और आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, we want to know what is your convincing power, what is inside of you which is telling you why not network marketing. Thank you so much, Uchi, for inviting us on the WeCaptured platform. We are very fortunate that we are coming live first time with such a host. I am actually in the accountant finance industry since last 15 years, as you already informed to all the audience. Actually, one company is there in Africa, West Africa. It's a conglomerate company. It's a very big group, and I was a group CFO from last 6-7 years. And when in the last COVID, when I came back to India, so I had nothing to start with it. But when I thought that what should I start afresh, because in the COVID again, if you want to resume it back, so the market condition does not support to us medically. Okay, in India at least you are fortunate, you are feeling safe. You can't be much safe in the other countries. So about network marketing, always I had in my mind कि जब भी हम मतलब कभी भी मुझे अगर कुछ शुरू करना होगा जॉब के अलावा, तो
मुझे बिजनेसमैन बनने का काफ़ी शौक था कि मैं एक बार कभी बिजनेसमैन बनूं और अपने लाइफ में कुछ फॉर्चुनेट क्रिएट करूं। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि सभी मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो बिजनेसमैन सोच सकते हैं बट बन नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी नॉलेज, कैपिटल, बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूजन आपको रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक मिडिल क्लास पर्सन अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है, वेदर ही इज नॉलेजेबल और नॉट। तो इसीलिए जब मैं इंडिया वापस आया, मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम था और मैंने अपने लाइफ में हमेशा मैंने बहुत सारे मेंटर्स को मैंने अलाउ किया। मीन्स I joined lot of mentors and I have listened a lot about network marketing. So उसकी जो पॉजिटिविटी है, एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने पार्टिसिपेंट्स को की लाइफ में नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स और उनके अंदर जो बिजनेसमैन बनने का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकता है। इसीलिए मैंने आने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और आज मैं यहाँ जो भी कुछ हूँ वो उस इंडस्ट्री की वजह से हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रहते हुए आप एक एक दिन, एक एक घंटे, जो भी है, जितना भी आप समय स्पेंड करते हैं, ये आपके लिए एवरी सेकंड कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड करके जाता है। और यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जिससे आप अपने सारे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। Very true, Pankaj. It's amazing. क्योंकि cut आवाज. So yes, it was amazing knowing Pankaj after coming from South Africa when you thought of doing a direct selling industry, network marketing. So was Usha was also comfortable with this decision, और उनका क्या approach था? Definitely, रुचि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। देखिए, हम लेडीज का अगर बात करें तो हम लोग कहीं पे भी रहें, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। घर भी संभालना होता है, अगर आप कुछ और भी कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो एक साथ सब कुछ मैनेज कर पाना और उसके बाद एक पैसे कमाने की जो आपकी चाह है वो भी पूरी हो पाना, इट्स वेरी टफ इन दिस टुडेज वर्ल्ड, राइट? इट इज नॉट ईजी। जैसे कि लोग सोचते हैं ना, अरे क्या है, ऑफिस पे तो जाना है, फिर घर आके काम करना है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट समथिंग कि उसके साथ मैं अपनी जो अर्निंग की एटलीस्ट मेरी जो चाह है मैं वो भी कर सकूं, एंड देन मेरी अपनी जो फैमिली है मैं उसको भी उतना ही टाइम दे सकूं जितना कि उनको जरूरत है। वरना पहले क्या हो रहा था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम तो हो रहा था लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली में इफेक्ट कर रहा था, रिलेशंस में इफेक्ट कर रहा था। सो यहाँ आने के बाद थोड़ा जब टाइम मिला कि नहीं, अभी सोचने का टाइम है, सो लेट्स प्लान समथिंग कि वो हम कुछ और बेटर कर सकते हैं इसके बारे में। सो बहुत सारी चीजें हमने रिसर्च की कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, बट सब में एक ही कंस्ट्रेंट आ रहा था, या तो आपको फुल टाइम देना पड़ रहा था, या तो आपको कोई ना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था। जॉब तो आपको पता ही है, आप पूरा 9 to 5 देंगे और उसमें अर्निंग आपको कितनी मिलेगी, ना के बराबर, जिसमें कि आप अपनी कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट? अगर कोई बिजनेस करते हैं तो हाँ, ये आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। कोई टैलेंट के साथ अगर आप आगे जाते हैं तो भी बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। टैलेंट के साथ Okay, so you were talking about that बच्चों को टाइम देना and then working in a corporate world was very difficult, and तो क्या आपके अंदर ये फेथ 100% है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप सक्सेसफुल बन पाएंगे, आपका फ्यूचर किस तरह से शेप होगा? So what is one thing and how did you do some research on this industry? Because there are a lot of people, before taking decisions before taking actions, they need to do little research. There are, like for example, अगर अपने बच्चे को आप डॉक्टर भी बनाना चाहते हो तो उसमें भी कितनी सारी स्ट्रीम है, तो कौन सी स्ट्रीम में वो जाए या फिर किस बैकग्राउंड को ज्यादा स्टडी करे तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। So I have seen people that instead of making them surgeon, they would prefer कि भाई रेडियोलॉजी कर लो, या तो फिर becoming an expert, आप किसी ब्रेन के एक्सपर्ट बनो, उससे अच्छा है वो आप डेंटिस्ट बन जाओ। So there are families, they sit down together and take decisions even for making their child, or the child is getting into medical industry and what to choose. तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा कोई प्रोसेस है? लोगों को अगर इसके बारे में डिसीजन लेना है और इस बिजनेस को आगे लेके जाना है तो उनको आपने किस तरह से रिसर्च शुरू किया? शायद आपकी गाइडेंस से उनको और थोड़ी जानकारी मिल जाए। और is it inside of you, is it very strong feeling that yes you will make it for network marketing?
एक्चुअली इनिशियली इट वाज नॉट लाइक दैट, क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हो ना तो बहुत सारे जिगल्स होते हैं कि अरे ये होगा कि नहीं होगा, इसमें आगे का क्या प्रोसेस होगा, हम अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, राइट। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, तो वो बहुत सारा कंफ्यूजन चलता है, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोगों की जो इंडियन अगर हम बोलें तो अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी है कि हम लोग कुछ भी करने से पहले हम लोग उसके फियर के बारे में पहले सोचते हैं, राइट। हमारे अंदर वो रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि हमें बचपन से रिस्क लेना सिखाया ही नहीं जाता। हम हमेशा एक वो बोलते शेल में हम लोग जीते आए हैं। सो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया रिसर्च तो इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी डीपली थोड़ा गई रिसर्च की इसमें, तो एक चीज मालूम चली कि आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए या फिर एलन मस्क को ले लीजिए, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ भी काम शुरू करने से पहले अपना एक नेटवर्क फॉर्म किया है। ये तो चलिए विदेशी बातें हो गई। अब इंडियन का एग्जांपल ले लीजिए, जियो ने क्या किया है, अपना पहले एक नेटवर्क बिल्ड किया है और तब ना जाके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोग आम आदमी क्या करता है, ये सोचता नहीं है, वो सोचता है कि नेटवर्क से कभी कुछ नहीं हो सकता, नेटवर्क सिर्फ केवल गप्पे हाँकने के लिए होता है बस। बट ऐसा नहीं है, आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो उस नेटवर्क से भी जो पैसा आता है वो एक सस्टेनेबल पैसा आता है, एक स्टेबिलिटी के पास पैसा आता है। देखिए मेरा ये मानना है कि जो जितनी जल्दी पैसा चाहता है वो उतना ही ज्यादा गरीब होता है। देखिए एग्जांपल मैं लेती हूँ, आप सड़क पे अपने भिखारियों को देखा होगा, राइट, उनको सबसे जल्दी पैसा चाहिए होता है, इसीलिए वो उसी लेवल पे रहते हैं। फिर उसके बाद आप एक सैलरीड पर्सन ले लीजिए, उसमें चाहे डॉक्टर हो या आपके कोई अकाउंटेंट हो, इंजीनियर्स हो, क्या है उनको महीने पैसा चाहिए, तो वो एक मिडिल एवरेज एज में लेवल पे ही आके रुक जाते हैं। लेकिन आप बिजनेसमैन को यही देख लीजिए, वो हमेशा कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा 3 से 4 या 10 साल का विजन लेके चलता है, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा अमीर इस आज के टाइम में है, और सबसे ज्यादा स्टेबल लाइफ जो जीता है, सबसे ज्यादा खुशियों वाली लाइफ जो वो जीना चाहता है वही जीता हुआ है। लेकिन आम इंसान ये सब नहीं सोचता। तो जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी तो मैंने इन सब चीजों के बारे में भी बहुत डीपली एनालिसिस किया। उसके बाद आपकी एक बुक है, what's the name of that book, Rich Dad and Poor Dad। मैं सभी को ये रिकमेंड करूंगी, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये बुक आप जरूर पढ़ें। ये आपको क्लैरिटी देगा कि आपको अगर अपनी लाइफ में एक लेवल अचीव करना है ना, तो आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए और किसकी सुननी चाहिए। अभी जैसे कि आपने बात की ना कि बहुत से लोग बुराई करते हैं, तो ऑब्वियसली जब मैंने इसमें कदम रखना चाहा तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, बहुत से लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया, तो लोगों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ बनाते हैं, टाइम पास करते हैं, हमें जोड़ के पैसा कमाते हैं एंड देन हमें छोड़ देते हैं। बट जब ये बुक पढ़ी तो ये चीज क्लियरिटी आई कि नहीं ऐसा नहीं होता। ये जो बुराई करने वाले लोग होते हैं ना, एक्चुअली वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो अपने डेवलपमेंट पे काम नहीं किया होता है, या फिर कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री के लिए फिट ही नहीं थे बट वो एंटर कर गए। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो आप अगर आते हो इसमें तो आप रेडी हो चेंज के लिए, क्योंकि चेंज बहुत जरूरी है। जब आप कुछ अर्न करना चाहते हो और खुद को चेंज नहीं करना चाहते उस अर्निंग के लिए, तो यकीन मानिए आप कभी अर्न कर भी नहीं सकते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री में और चेंज की बात आई जी, just cut. Neelam, eco आवे थे get into direct selling industry. Did you from day one get positive results from people? जब आपने लोगों से अप्रोच करना शुरू किया, क्या आपको डे 1 से पॉजिटिव रिजल्ट मिला? अगर मिला तो कैसे मिला, और नहीं मिला तो उस वक्त आप क्या सोचते थे? What you were thinking when you were not getting results, positive results from people? क्योंकि there are so many examples where when we start a new business, हर चीज एक जैसे नहीं होती है। तो आपके केस में कैसा था? And when who initiated? Pankaj initiated or you initiated this business? Actually, who initiated? एक्चुअली आपने बहुत सही चीज बोली कि जब हम शुरू करते हैं ना तो बहुत सी निगेटिविटी हमारे आसपास होती है, क्योंकि देखिए आगे बढ़ने में इस दुनिया में कोई हेल्प नहीं करता है, आप सिर्फ अपने लिए हेल्प करते हो। लेकिन हाँ, पीछे घसीटने के लिए आपको बहुत से लोग आ जाएंगे, राइट। सो जैसे कि हमने भी जब शुरू किया ये चीज ना, तो हम लोगों को भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली, अपने रिलेटिव हो गए या फ्रेंड्स हो गए कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे भी ये वाले रिलेटिव थे या ये फ्रेंड था, उन्होंने किया बट कुछ रिजल्ट नहीं हुआ।
सो लेटर ऑन मुझे ये समझ में आया कि मैं आखिर फॉलो किसको कर रही हूँ, मुझे कैसा बनना है। तो मैं जैसा बनना चाहती हूँ मुझे वैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को फॉलो करूं जो कि खुद भी कुछ नहीं है, और वो जब खुद कुछ नहीं है तो मुझे कैसे आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। सो उस टाइम से मैंने अपना जो ये वाला सर्किल था ना आलतू फालतू लोगों वाला, वो मैंने कट करना शुरू कर दिया। मैंने वो सर्किल उठाया जिससे कि मुझे डेली मैं अपने आप को 1% एक बेटर लाइफ बनाने में, अपने आप को एक 1% बेटर बनाने में जिनसे मुझे मदद मिल सकती है, मैंने ऐसे लोगों को अपने आप से जोड़ना शुरू कर दिया। आपने देखो बहुत सारे मेंटर्स हैं जो एक लेवल पे आज की डेट में पहुंच चुके हैं। सो कुछ तो रीजन है कि वो वहां पे हैं। सो अगर हम उनको फॉलो नहीं कर सकते तो बेटर है हम कम से कम ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जो जिन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कुछ अचीव ही नहीं किया है। एटलीस्ट हम लोग नीचे तो नहीं जाएंगे। सो मैंने भी यही चीज शुरू की, और जब ये शुरू की ना तो बहुत सारी चीजों में चेंज आया। एक तो देखिए थॉट प्रोसेस तो चेंज होता ही होता है, आपका सोचने का तरीका, चीजों को एनालाइज करने का तरीका, बहुत कुछ बदल जाता है। और जब मैंने ये चीज घर में शुरू की तो ऑब्वियसली घर में जो है उसको तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, राइट। सो मेरे हस्बैंड ने भी सुना और उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को समझा। तो जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हम दोनों ने ज्वाइंटली इस पे वर्क करना शुरू किया। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद पे तो वो चीज चेंज करते ही करते हैं, और अपने बच्चों को भी इस चीज में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है जब बच्चे आपके छोटे होते हैं तो उस समय जो उनका माइंडसेट आप डेवलप कर दोगे वही माइंडसेट कहीं ना कहीं जाके आगे उनको एक लेवल अचीव करने में, उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। देखिए आपने सुना होगा कि जब लोग धान लगाते हैं गाँव में खेती के लिए तो नॉर्मली 4 महीने में उनको रिजल्ट मिल जाता है, राइट। 4 महीने बाद काट के एंड फिर दूसरी आपकी खेती लग जाती है वहां पे। लेकिन यदि हम आम के पेड़ के बारे में नहीं बोल सकते, रीजन भाई उसमें तो आपको जल्दी आपको रिजल्ट मिल गया, सब कुछ है ठीक है, लेकिन उसमें आपको बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। तो जो नॉर्मल लाइफ वाले होते हैं और जो जॉब वाले होते हैं ना, सेम उनकी कंडीशन वो धान की खेती वाली होती है, हर महीने उनको कल्टीवेट करना ही करना है। लेकिन आम के पेड़ में क्या है, आपको शुरू में हो सकता है वो 3-4 महीने आपको ना दे फल, या 3-4 साल आपको फल ही ना दे, वो टाइम ले, लेकिन जब एक बार देना शुरू करता है ना तो उतनी एंड लाइफ तक वो आपको फल देता रहता है। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। लेकिन जब कुछ लोग होते हैं ना जिनको चाहिए कि डे 1 से जैसे ही हम एंटर करें हमको एक पैसा आना शुरू हो जाए, तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे लोगों को आप या तो अपने डेवलपमेंट पे वर्क करिए, अदरवाइज ये इंडस्ट्री छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आप कोई भी बिजनेस करो आपको डे 1 से कभी भी पैसा नहीं आएगा, एक्सेप्ट कि आप जब तक नौकरी नहीं करोगे। नौकरी करोगे उसमें भी आपको डे 1 में नहीं, आपको महीने के अंत में पैसा मिलेगा। डे 1 में पैसा अगर देखें तो सिर्फ भिखारियों को मिलता है आज के टाइम में, राइट। सो अगर आप वो लेवल तक नहीं जाना चाहते और चाहते हैं कि एक लेवल अचीव करें तो फर्स्ट change your thought process, change your mindset and start associating with the mindful people. That request. That's amazing. Like as you rightly said that बच्चों में भी काफी चेंज आता है जब से आपने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की। घर में एक माहौल बदला, एनवायरनमेंट जो करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। एंड योर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आई कैन सी थ्रू योर कन्वर्सेशन उषा that it is not about today, it is all about building our tomorrow, it is all about growing our mindset for future industry, जहाँ पे आप long term business के बारे में सोचिए। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अगर आपको धान उगाना है तो 3-4 महीने में फसल कट जाती है, लेकिन आपको आम का पेड़ उगाना है या फिर आम आप लगा रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, वो आम का पेड़ इतने भर के आम देता है जिसके लिए आपने या आपके बच्चों ने शायद कोई काम ही ना किया हो। तो यस, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हम डेफिनेटली आपकी कन्वर्सेशन में समझ पा रहे हैं। आई वांट टू आस्क यू वन वेरी simple question to Pankaj, because being a MBA finance and working with a lot of other industries where finance and accounts and everything is involved, so are you very calculative Pankaj? आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करने में थोड़ा कैलकुलेट करते हैं या फिर क्या सोचते हैं जब आप जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप फ्यूचर बनाने के लिए आपकी जो सफलता की जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके साथ कोई एज ए मेल कोई ऐसी वारदात या फिर कोई ऐसा इवेंट बना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं लोगों के माइंडसेट को लेकर, आपके कोई एक्सपीरियंस है? इसका आंसर रुचि जी मैं आपको 1 लाइन आंसर नहीं देना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा टाइम लेके इसको मैं डिटेलिंग करना चाहूंगा। देखिए
किसी भी इंडस्ट्री को आप ज्वाइन करते हो ना, तो उसके हर इंडस्ट्री के आपके पॉजिटिव्स हैं, हर इंडस्ट्री के नेगेटिव हैं। जब आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से आप जब निकलते हो ना, तो आपका ध्यान सिर्फ यही होता है आपके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लगी होती है फैमिली की और सोसाइटी की, कि जितनी जल्दी आप जो है पढ़ाई करके निकलो तो आप कुछ इनकम अर्न करना स्टार्ट करो, तो क्योंकि आपका पीछे कोई बैकग्राउंड पैसों का होता नहीं है। तो उसी तरीके से मैंने भी स्टार्ट किया, और कि ठीक है 20-40,000 रुपए कुछ आने स्टार्ट हो जाए, जिससे आपके एटलीस्ट फिर सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैरिड लाइफ भी कंटिन्यू करनी है। लेकिन आप सोचो कि बेसिकली हम लोग ह्यूमन लाइफ यहाँ पर लेके, अगर हमको ह्यूमन लाइफ मिली है तो क्या पर्पस क्या है उसका? सिर्फ ये फिक्स्ड पैसे कमाना, फिक्स्ड पैसे कमाए फिर 60 के बाद ये सोसाइटी ही हमको रिटायर कर देती है, राइट? तो आप देखोगे 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उनकी सबकी मेंटलिटी एक क्राउड मेंटलिटी बन चुकी है कि उनको फिक्स 9 to 5 जॉब करनी है, कुछ पैसे कमाने हैं, फिर कुछ जमा करने हैं अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए, और उसके बाद फिर निकल जाना है। उनका कहीं भी ध्यान नहीं होता लाइफ को एंजॉय करने में, एक बेटर पर्सन बनने में, एक बेटर सोसाइटी देने के अंदर। तो बहुत सारी, अगर आप देखोगे ना, जो 95% जो क्राउड है जिस तरफ भाग रही है फिक्स्ड इनकम की तरफ, उसमें इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वही सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बन के आपके आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अब्रॉड में जॉब करके इतना तो पैसा कमाया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना वो सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया कि एक मेन स्टैंड रहता है कि आपका आइडिया तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन भी चाहिए। लेकिन एक ये इंडस्ट्री ऐसी थी, इसने मुझे इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिए जो कि आपको कोई बिजनेसमैन में या आपको जॉब इंडस्ट्री में आपको नहीं मिल सकता। आज मैं एवरी डे आई एम नाउ बिकमिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। इसके बारे में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक बेटर पर्सन बन रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, 9 to 5 जॉब कहने के लिए होती है, लेकिन जब आप अपनी जॉब में बेस्ट देते हो ना, जैसे मैं अपनी कंपनी में जब ग्रुप सीएफओ था, कंपनी का पूरा लीडरशिप आपके ऊपर होती है, डिसीजन मेकिंग आपके ऊपर होती है, आपकी जवाबदेहिता बनती है उसमें। तो 9 to 5 कहने के लिए होती है। जब while I was working around 18 hours a day and 7 day a clock, 7 दिन काम करता था। झूठ बोल के भी ऑफिस में काम करना पड़ता था कि नहीं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना काम खत्म करना होता था। 6-7 ईयर्स जो मैंने स्पेंड किए हैं लाइफ के, मैंने अपनी स्पीड अर्निंग की बहुत बढ़ा दी, लेकिन वही फिक्स्ड इनकम बढ़ी। लेकिन वही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बात करें तो मैंने 9 to 5 नहीं, मैंने कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टाइम इस इंडस्ट्री को नहीं दिया। पूरा टाइम मेरा इस इंडस्ट्री को था, पूरा टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ था। तो यहाँ पे आप देखो कि जहाँ जॉब में आपको फैमिली से अलग कर दिया जा रहा है, सोसाइटी से अलग कर दिया जा रहा है, नेटवर्क इंडस्ट्री आपको आपकी फैमिली के करीब लेके आती है, दोस्तों के करीब लेके आती है। आप अपने लिए नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी कुछ कर पाते हो उसके अंदर यहाँ पर। तो बेसिकली नेटवर्क इंडस्ट्री कभी अपने आप को केवल आप पे डिपेंड नहीं करती, आपको वो वापस लौटाने का मौका देती है। जॉब में आप कभी हमेशा अपने लिए काम करते हो, दूसरों के लिए काम नहीं करते, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में हमेशा जो भी बंदा इसमें जुड़ता है वो अपने आप को बेटर पर्सन बनाता है और सोसाइटी को वापस देने की कोशिश करता है। Wow, amazing, Pankaj. This is another way of thinking of yours, which our viewers are viewing. कि देखिए, अपने लिए तो सब लोग काम करते हैं। 9 to 5 की जॉब में शायद आप पहले तो अपने सपनों के बारे में सोच नहीं पाते, एज यू आर सेइंग, जैसे आपने राइटली कहा कि एक ऐसी नोबल इंडस्ट्री जहाँ पे आप सिर्फ अपने लिए पैसे नहीं कमा रहे हो, लेकिन बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो, बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड एट द सेम टाइम ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है जिससे आपके ड्रीम्स अचीव करना भी इतना ही प्रैक्टिकल है जितना कोई भी इंडस्ट्री में हो। और इसमें जैसे उषा ने बताया, देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो एक रिस्क फ्री बिजनेस जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिले, एक रिस्क फ्री बिजनेस जहाँ पे हम अपने फ्यूचर के लिए वो सारी चीजें कर पाए विद फैमिली टाइम। ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे आप बता रहे हो ऐसे ही होता है कि आपके फाइनेंशियल जो गोल्स है उसको पूरा करने के लिए आपको परिवार से दूर जाना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जिसके बारे में डिस्कस ही नहीं होता है, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। और एक समय के आने के बाद, एक उम्र गुजर जाने के बाद हमें लगता है अरे हमने बहुत समय अपने लोगों के साथ बिताना, हमारा जो टाइम था वो निकल चुका और हम अपने लोगों के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे।
तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एंड एज यू आर सेइंग कि अभी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना स्टैक पीरियड चल रहा है, इतने हालात खराब हैं कि जिसके चलते we all have to think about network marketing industry. We all have to look at your perspective about direct selling industry, क्योंकि जिसके चलते हम बहुत सारे लोगों के लिए opportunity create कर सकते हैं, right? So yes, absolutely, it's wonderful thought where you already shared that I'm learning, I'm improving, I'm becoming better person. So that itself is something, शायद कोई इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो वहां पे काम करते करते आप रूटीन लाइफ तो जी रहे हो, आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो वो तो कर रहे हो, लेकिन वैरायटी ऑफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मौका नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों ना करे? सो आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू टुगेदर कलेक्टिवली. आई वांट योर आंसर that what are your dreams? आपके strong 3 रीजन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने के? Very powerful 3 reasons I want to know from both of you. And आपके बच्चों के बारे में कुछ अगर बता पाए, कितनी उम्र है और आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हो, तो कैसे मैनेज कर रहे हो? घर में कैसा माहौल होता है? अभी तो आई थिंक कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा होगा लखनऊ में, लेकिन आप जब मैनेज कर रहे हो घर से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, तो आपको इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? देखिए, मेरा क्या, एक 7 साल का बेटा है और एक 4 साल की बेटी है. सो अभी मैं बताऊं इस लॉकडाउन में कैसे मैनेज हो पा रहा है. दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग. पहले ही जैसे मैंने बोला, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो, यू आर इन दिस मार्केट, राइट? सो आप तो जानते ही हैं, हम लोग वैसे भी इंडिया थोड़ा अगर देखें तो बाहरी देशों से थोड़ा 6-7 साल पीछे चलता है टेक्नोलॉजी के मामले में, राइट? जो आज हम फेस कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी वो पहले ही अपग्रेड कर चुके हैं, वो पहले ही पूरी तरीके से ऑनलाइन जा चुके हैं. और इसीलिए आज कोविड के टाइम पे भी दे आर सिटिंग वेरी क्वाइटली एंड हैप्पी. बट इंडिया इज स्ट्रगलिंग इन ऑल फील्ड, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या जॉब का फील्ड हो, हर चीज में प्रॉब्लम है वुमेन्स को अपना घर से काम करने में, बिकॉज दे आर नॉट, मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन्स आर नॉट दैट मच टेक्नोलॉजिकली साउंड. सो वो सारे इश्यूज हैं. तो आज मैं एक चीज अपने शेयर करना चाहती हूँ इसके साथ में. देखिए, दो बातें हैं. या तो आप किसी चीज में बिल्कुल कूदो मत, अगर आपको बिल्कुल लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए या इतना ज्यादा डरे हुए हो, तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में इवन नहीं जाना चाहिए. आप अपनी 9 to 5 की जॉब करिए. लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना और चाहते हो कि आप अपने साथ साथ अपने आगे वाली जनरेशन को भी आप चेंज कर पाओ, राइट? सो आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेहनत भी करनी है, लर्निंग भी लेनी है, क्योंकि लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, जब तक आप कोई चीज लर्न नहीं करोगे ना, आप वो चीज आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज हो. देखिए, आपके अगर याद करो अपने ग्रेजुएशन या एग्जाम के टाइम को, आप एक एग्जाम पास करने के लिए, वो 100 नंबर का एक एग्जाम पास करने के लिए पूरे साल भर का जितना होता था वो आप 3 दिन में आप कवर कर लेते थे, राइट? तो वो क्यों होता था? क्योंकि हमारे पास एक प्लान था कि भाई हमें ये चीज क्वालिफाई करनी है. तो जब हम वहां पे अपने एजुकेशन के टाइम पे हम लोग इतना कुछ सोच रहे थे, कर रहे थे, तो हम आखिर क्या हो जाता है कि हम जब अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं तो वही चीज हम फॉलो नहीं करते हैं. तो ये आज के यूथ को भी सोचने वाली बात है, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा अपने लिए ज्यादा वर्क करना चाहिए कि भाई हमको कहाँ जाना है और अभी कहाँ है और वो वहां कहाँ तक जाना है, वहां तक आप कैसे जाओगे. ये 3 चीज आप अगर सोच लो ना तो आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो. And what are your 3 strong reasons, Usha and Pankaj, for joining this industry and working with this industry? The first reason is that I want to change the thought process of my complete family. The first, because changing in thought process is the way to success. The first is strong reason. आपको पता है, आप ब्रिंगिंग अगर आप स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हो तो आपको उसके रिजल्ट होते हैं. भाई एक तो ये है कि आप रोज रोज कुआं खोद के पानी पियो, या तो एक बार कुआं खोदना सिखा दो, फिर पानी पीने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. What is the second reason? सेकेंड रीजन ये कि मैं चाहती थी कि अपने फैमिली के साथ साथ मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे मुझे अपने आने वाले टाइम पे ना तो मुझे टेंशन लेनी पड़े कि भाई अभी कुछ हो गया लाइफ में तो पैसा कहाँ से आएगा, इनकम कहाँ से होगी, फैमिली कैसे चली होगी. क्योंकि मैं तो भाई ऐसे हूँ कि मैं अपनी लाइफस्टाइल में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ. तो अभी वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आपका कंटिन्यू इनकम आता रहे.
सो एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि एक ऐसी इनकम मुझे बिल्ड करनी थी जहां मुझे ऐसा ना हो कि मुझे पूरे दिन लगना पड़े, बहुत मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट पूरा दिन लग के अपनी फैमिली टाइम मुझे कॉम्प्रोमाइज करके अपनी इनकम ना जनरेट करनी पड़े. I think you are trying to say that you want to balance your family and your personal and professional life, right? Professional. Okay. And what is the third reason? Third reason, I want that my husband will tell you that what is the third reason for Let's coming listen into from this Pankaj. industry. What is the third reason? Yes. I have my own 3 reasons, so you should tell your third reason, no? So Okay. just share from your side also, Pankaj. Okay, see, उषा ने ज्वाइन तो यहाँ आने के बाद किया, बट इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पिछले अभी ये अगर कोविड के 2 साल में अगर मैं जोड़ लूँ तो मैं जब से मैं अफ्रीका में था तब से मैं कई सारे मेंटर से जुड़ा, तो मैं करीब 8 ईयर से इस इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी के बारे में पढ़ रहा हूँ. तो मेरा हमेशा से ये ड्रीम था जॉब के साथ में कि जब भी मैं वापस जाऊंगा दोबारा जॉब तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ जरूर करूंगा जो मतलब कुछ समथिंग डिफरेंट हो. तो मेरा जो पहला जो ड्रीम है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, जो कि इस 8 इयर्स के एफर्ट्स के बाद मैंने जो मैं डिसाइड कर पाया, वो पहला ये था कि क्या मतलब why you came on this earth just to do the job, what something different. मेरा कहने का मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मतलब मैंने क्यों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लैरिटी यही है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती आप कुछ भी डिफरेंट नहीं कर सकते, राइट. तो सबसे पहले जो रीजन था ज्वाइन करने का ये था कि सपोज करो कि आप डॉक्टर हो तो आपने पेशेंट को ठीक कर लिया, तो कोई भी डॉक्टर क्या उसमें डाउट रहता है कि वो अपने पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएगा? नहीं होता. कोई भी इंजीनियर, उसको ब्रिज बनाना है तो उसने इतने साल तो वही स्टडी करी है, उसने क्या मतलब ऐसा एक्स्ट्रा कुछ कर दिया कि जो उसको कुछ करने में प्रॉब्लम आ रहा है. मींस जो आप हो, जिसकी आपने इतनी सारी स्किल्स डिराइव की हैं, वो तो आप डिलीवर कर ही देते हो. तो वो सब कुछ करने में आपको उसके अंदर आप ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाते जिसमें आपको अपने ऊपर प्राउड हो कि हाँ वी डिड समथिंग बेटर, राइट. तो नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपके अंदर स्किल्स नहीं होती, आप इसमें लगातार एंडेवर एफर्ट्स करते हुए आप अपने अंदर स्किल डेवलप करते हो और फिर वो अचीव करते हो जो आपके पास नहीं होता है, which is very difficult for anybody, right? जैसे मैं अगर मान लीजिए अकाउंटेंट हूं तो मैं अगर अकाउंट्स मेंटेन करूं तो what is a big challenge in that one? मेरा काम है वो मैं करके दिखा सकता हूं, राइट. तो मैंने हमेशा से एक चीज ये मैंने मन में सोचा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं. दूसरा कोई सेल्स वाला बंदा आके कमा रहा है, कंपनी कमा रही है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, राइट. तो व्हाट एक्स्ट्रा यू अचीव इन योर लाइफ. तो मतलब अगर देखिए हर बंदा कोई भी अगर आप देखोगे ना, अगर थोड़ा फील करके देखो कि जितनी भी वर्ल्ड में स्पीसीज हैं दे आर डेवलपिंग. इवन आप ये कोविड के वायरस पे देखो, वो भी अपने आप को बड़ी तेजी से म्यूटेट कर रहा है, लेकिन ह्यूमन अपने आप को चेंज नहीं कर रहा. इस नेटवर्क इंडस्ट्री ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को लगातार चेंज कर सकूं और वो अचीव कर सकूं जो कोई सोच भी नहीं पाता. क्योंकि जो आपने सोचा है वो अचीव कर लिया तो वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री आपको वो अचीव करने की प्रेरणा देती है जो आपने सोचा भी नहीं और आप अचीव करने के लिए टिल द एंड ऑफ योर लाइफ यू कंटिन्यू टू एंडेवर इट, राइट. दूसरा मेरा जो उसमें जो रीजन था, क्लैरिटी थी जिसकी वजह से मैं इसके अंदर आया, वो था फाइनेंशियल फ्रीडम. जॉब से आप हैंड टू माउथ तो कर सकते हो आप, लेकिन आप सोचो कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो आप बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन आप अचीव नहीं कर सकते. लेकिन ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि आपसे कुछ मांगती नहीं है, आपको देने की कोशिश करती है और आप इससे इतना कुछ ले सकते हो और सोसाइटी को वापस कर सकते हो जो आप किसी और इंडस्ट्री, किसी और पैटर्न, किसी और मॉडल पे आप काम करके नहीं कर सकते इसके अंदर. तीसरा है आप इसमें अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और एंजॉय करते हुए आप अपने आप को एवरी डे यू कैन मेक योरसेल्फ बेटर, जो कि कोई भी जॉब, कोई भी दूसरी इंडस्ट्री, कोई भी स्किल, कोई भी मॉडल आपको ये करने का मौका नहीं देती. आप अपने जॉब में जाते हो, अगर आप डॉक्टर हो, आप अगर कोई पर्टिकुलर मान लीजिए आप ब्रेन सर्जन हो तो आप लगातार ब्रेन पे ही काम कर रहे हो, तो आपने जो सीखा 5-10 सालों में वही आप टिल द एंड करते रहते हो. एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते आप. सीए अगर हो तो आप अकाउंटिंग बेटर कर सकते हो, लेकिन कुछ आप एक्स्ट्रा अचीव नहीं कर सकते इसके अंदर. लेकिन I think
according to you, as you are saying, Pankaj, so much creativity is involved, right? बहुत सारी नई न्यूनेस है इस इंडस्ट्री में. आने वाले समय को हम विजुअलाइज कर पाते हैं. अनअचीवेबल जो लोगों को लगता है वो अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाता है. और साथ ही साथ में एक लाइवली, आई थिंक बोथ ऑफ यू जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितना लाइवलीनेस है, कितनी एनर्जी है, कितना आपका रूटीन पॉजिटिव और कितनी सारी चीजों से भरा हुआ होगा, which we can see on your conversation, on your faces, जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि yes, there is something to look forward, you know. बाकी इंडस्ट्री में लोग स्टेगनेंट हो जाते हैं, बाकी इंडस्ट्री में 9 to 5 के कल्चर में ढल जाते हैं. शाम होगी, घर पे आएंगे, हस्बैंड, बस वही रूटीन, वही सेट हो जाता है, सुबह वही रूटीन आपको जाना है. बट यहाँ पे विजुअलाइजेशन हैज बिकम वेरी पावरफुल, जो आपकी बातों से पता चल रहा है. और दूसरी बात, इट्स समथिंग वेयर इट इज वैल्यू एडिशन, यू नो. लाइफ की वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको सेटिस्फेक्शन फील होता होगा जब आपकी टीम ग्रो करती होगी, जब आपके लोग ग्रो करते होंगे, तो आपके मन में बहुत सारे आप किसी के मेंटोर बनना आपको अच्छा लगता होगा कि भाई चलो, एटलीस्ट बिकॉज आई एम देयर इज समवन हु इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, एंड जिसकी वजह से उनको भी सफलता दिलाने में भी एक अच्छी फीलिंग आती है दैट आपने यू डिड समथिंग बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो. Because it is a network marketing, I think it's a win-win situation जहाँ पे whoever is your partner, जो भी आपके एसोसिएट है, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो आपके होने से खुश महसूस कर रहे हैं. आपके होने से उनको ऊर्जा मिल रही है, आपके होने से उनको एनर्जी मिल रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि पंकज आप हो, सो आई डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आप पूरा रिसर्च करके इस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो. 15 साल की आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को भी आपने इसमें ढाला है, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. इट्स वेरी बिग क्रेडिबिलिटी, यू नो. ये एक बड़ा पावर बन जाता है, एक स्ट्रेंथ बन जाती है. दूसरे और फैमिलीज को डिसीजन लेने के लिए एक जबरदस्त फोर्स मिलता है कि अगर ये मियाँ बीवी 2 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं, तो व्हाई कांट वी अचीव दैट सक्सेस. और जो आपने बताया, ये फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ वेरी एसेंशियल टूल, जिसके लिए बिजनेस करना बहुत ही जरूरी है. और आने वाले समय में नो वन नोज व्हाट विल बी इकोनॉमी लाइक, व्हाट विल बी फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स पे कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो करेगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता है. हमें अपने बच्चों के बारे में नहीं पता है, एटलीस्ट वी कैन कैरी ऑन दिस लेगेसी एंड बिल्ड अ पावरफुल फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन. क्योंकि आपके बच्चे बड़े होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं. आपके बच्चे बड़े होकर कोच बनेंगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है. डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं. कुछ भी बने या ना बने, लेकिन उनके पास एक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम जरूर रहेगा, जो अभी से आपने जैसे आम का पेड़ लगाया और आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया है, तो एक समय आएगा जब बच्चे बड़े होंगे और हमारी उम्र शायद इतनी ज्यादा नहीं होगी कि हम बहुत ज्यादा एक्टिवली फिजिकली हेल्दी होके काम कर पाए, तो एक सोर्स ऑफ मनी, एक पाइपलाइन हमारे अकाउंट में पैसों के आने की चालू रहेगी. तो वो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पस भी सर्व करता है. सो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग शेयरिंग. मैं और भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ पंकज, स्पेशली टू यू, दैट हाउ डू यू गेट सच एनर्जी? क्या आप रोज किताबें पढ़ते हो? आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जिससे आपको रोज इतना लाइवली रहने का मौका मिलता है? कैन यू शेयर? मैं इसीलिए अपना हाथ ऊपर कर रहा था कि मैं कुछ आपसे और मिनट्स ले पाऊं और मैं कुछ अपनी बातें बता पाऊं. ये 3 पॉइंट जो मैंने ऑडियंस के साथ और आपके साथ शेयर किए, पहला पॉइंट आई डोंट नो कि मतलब सभी लोगों ने ठीक से समझा कि नहीं समझा, बट इन तीनों पॉइंट्स में अगर उन तीनों में से भी फिल्टर करें कि कौन सा बेटर पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जिसमें मैं एवरी डे एवरी सेकंड में बेटर बनने की बात कर रहा था, और आपने उषा से क्वेश्चन किया था कि आपके बच्चों में मतलब जो है क्या चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से, तो वो तीसरा जो मेरा जो क्लैरिटी थी, जो तीसरा मेरा जो पर्पस था, वो उसमें ये चीज भी जुड़ी हुई थी इसके अंदर. जब आप खुद एक बेटर पर्सन बनते हैं, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आपने किसी अकाउंटेंट को हायर कर लिया, वो जिंदगी भर मरते दम तक मुनीमगिरी कर रहा है या अकाउंटिंग कर रहा है. आपने किसी टाइपिस्ट को बुला लिया, वो टाइपिंग कर रहा है. IT वाले को बुलाया, वो जिंदगी भर आपके कंप्यूटर ठीक कर रहा है, कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है. जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हो ना, तो एवरी डे आपके यहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो कि आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि आप हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप किसी को हायर नहीं करते हैं. यहाँ पर आपको अपने आप को एनेबल करना पड़ता है. जैसे मैं कभी पब्लिक में कभी बोलने नहीं गया, लेकिन आज मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ रही है. मतलब इफ यू वांट टू डू एक्सेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू हैव टू बिकम अ गुड स्पीकर. तभी आप पार्टिसिपेंट से बात कर पाओगे, उनको कन्विंस कर पाओगे, अपनी अच्छी बातों को एक्सप्रेस कर पाओगे. क्योंकि आपके पास क्या है, डजंट मैटर, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, राइट?
दूसरा, आप जॉब में जब होते हो ना, तो आप जितना है आपके पास उतना ही डिलीवर कर पाते हो, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब इन शॉर्ट में दूसरा क्या बोलना चाहूँ, जॉब में जब भी आप होते हो तो लोग ये सोचते हैं कि एक तरह की जॉब होती है सेलिंग, दूसरी जॉब होती, मतलब दो तरह की जॉब में डिवाइड हो जाता है, एक सेलिंग जॉब, एक नॉन सेलिंग जॉब। जबकि मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि दुनिया में कोई भी जॉब आप कुछ भी कर रहे हो, वो एवरीथिंग इज सेलिंग, राइट? मैं भी यहाँ हूँ, अपने सर्विसेज को सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को एज अ मेंटर में सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वर्ल्ड बेस्ट सेलर बन सकते हो। आप अपने जो विजन है, आप अपने की जो ड्रीम है, वो दूसरों को, आप पार्टिसिपेंट्स को सेल कर सकते हो, उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। तो हम जब डेली एवरी डे व्हेन वी बिकम अ बेस्ट पर्सन ऑफ आवरसेल्फ, न्यू वर्जन एवरी डे, वर्जन 2, लाइक रोबोट मूवी आती है तो वो बोलते हैं रोबोट 1.0 देन 2.0। तो बच्चे हमको देख रहे हैं इस टाइम पे, राइट? और बच्चे क्या बनते हैं, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि देखिए अगर उसके अंदर स्किल्स तो डेवलप हो जाएंगी, पैसे कमाने के बाद तो वो तो कैसे भी कमा लेगा, लेकिन अगर वो बेस्ट पर्सन नहीं बना ना, तो उसके यहाँ पे मतलब इंसान होने का कोई पर्पस नहीं है। तो जब वो हमको देखता है कि उनके पेरेंट्स एवरी डे दे आर लर्निंग सम न्यू स्किल, तो वो लोग भी जो है रोज नया सीखते हैं। वो भी आके मुझे बोलता है, पापा देखो आज मैंने ये सीखा। तो मुझे लगता है कि ओके, जब हम कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपस में बात करते हैं यार, पब्लिक वो एक स्पीच डिलीवर करनी है तो लेट मी राइट सम कंटेंट, फिर बोलना है, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग मतलब अभी आपको अगर अच्छा दिखना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना है, अपने वेट में उस पर काम करना है। तो बच्चे भी वो देखते हैं, तो सुबह उठ के वो भी जाते हैं सब वॉक। तो एवरी डे दे आर लुकिंग एट अस कि हम लोग क्या नया कर रहे हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो तो देखिए, पैसा तो आप कहीं अच्छा काम करोगे ना, पैसे तो कमाओगे ही आप, क्योंकि ये दुनिया पैसा चल रही है, तो कुछ भी करोगे पैसा आएगा। लेकिन अगर आपको बेस्ट पर्सन बनना है ना, एवरीडे कुछ नया करना है, तो आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जरूर चूज करनी चाहिए, क्योंकि यही वो इंडस्ट्री है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। एटलीस्ट यू विल नॉट हैव सैडनेस इन यू कि आपने कुछ नया नहीं किया। Amazing. I think I love your thought process on this, that everything is all about selling. Life में सब सारी चीजें हैं वो सेलिंग को लेकर है, और सारी जो चीजें हैं वो इस तरह से ग्रो हो रही है कि अगर पैसा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम एवरीवेयर। जहाँ पे आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करोगे वहां से पैसा आना ही आना है। लेकिन direct selling industry is all about becoming better version, as you are saying. Direct selling industry is all about growing powerfully well. जो आप करते हो आपके बच्चे आपको देखते हैं, and it become all imitation. बच्चे भी हमें इमिटेट करते रहते हैं, वो हमें कॉपी करते हैं कि मेरे पापा क्या सोच रहे हैं, पापा की स्पीच तैयार हो रही तो पापा कैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, पापा कैसे तैयारी करते हैं, अपनी बॉडी पे कैसे काम करते हैं, अपने माइंड पे कैसे काम करते हैं, एंड दैट्स ऑल लर्निंग। सो ये थे हमारे साथ पंकज सिंह एंड उषा सिंह फ्रॉम लखनऊ, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की। Usha, you want to share something quickly? Yes, Usha. Through you, I just wanted to ask viewers one question. Think about your wealth. Wealth मतलब क्या? आपने आज पैसा कमाना छोड़ा, तो उसके बाद अपने सेविंग किए हुए पैसों से आप कितने टाइम आप अपने आप को सर्वाइव या अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकते हो? Think about that. Think about your wealth. और अगर ये आप आज ही जाके करें, अगर आप देखते हैं कि आप साल भर से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा आप अपने सेव किए हुए पैसों पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, देन दिस इज द राइट टाइम। आपको सोचना पड़ेगा कि उसके बाद क्या। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आज जाके एटलीस्ट अपने आप से ये जरूर पूछें, चेक करें कि आप कितने टाइम सर्वाइव कर सकते हो बिना आज कुछ किए। अगर नहीं कर सकते, सिर्फ 1 साल कर सकते हो, तो प्लीज थिंक अबाउट दैट। Thank you. So Usha is trying to say that wealth creation is all about a long term base, जहाँ पे आपको पैसे कमाने जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपके पास 1 साल के बाद आपके पैसे खत्म हो जाने, आपको पता है कि you cannot survive for more than 1 year, according to her, ask this question to yourself, your family, sit at night, think about it and take decision. Why not network marketing? So it was amazing conversation with Usha Singh and Pankaj Singh. मुझे बहुत अच्छा लगा. It was a wonderful session where
We have learned how to manage with small children. बच्चों के साथ कैसे काम किया जाए, अपनी पर्सनालिटी पे काम कैसे किया जाए, 15 साल के एक्सपीरियंस के होने के बावजूद भी नई इंडस्ट्री में लर्निंग का क्या माइंडसेट होना चाहिए. So everyone can learn. The more you learn, the more you earn. Signing off, Ruchi Doctor on Be Capacited platform. We will keep sharing with you lots of such kind of episodes where you will become powerful for taking decision for your future industry, network marketing, which is on the bend of the knee. Thank you so much. Thank